धर्म परिवर्तन के बाद क्या खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ की पूरी तस्वीर। नमस्कार, मनीषी कश्यप, आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुनिए पूरी खबर। Today, the Supreme Court passed a very important order, an order that will have repercussions all over the country. We have not got the full copy of the order, but what we can tell you is what we have submitted to the court. Our essential submission was that a person who has converted himself from SC/ST caste into Christianity cannot take the benefits of the act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But today what the court has laid down is very important. It will have a lot of implications for people. And the court was very clear and categorical in saying that once you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book, and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. So do you think that if that matter is settled, then it will have also impact? No, I think what we have argued is slightly different. But as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. The current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the Act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the Act. The situation can only be changed if somebody comes in the court and form of a review or challenging that. That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying it. As far as things have for today, I am talking of what we all as a team submitted. The tendency of the larger issue won't affect today's judgment. Should not affect today's. It was a case of where a person who was professing Christianity has filed a case under the SC/ST Act against somebody in the village. So our argument essentially, both of us, what we had submitted, once he converts himself to Christianity, and admittedly he was a pastor, so we said he cannot take that benefit. That is our limited submission. सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट को लेके किसके लिए लागू होगा या नहीं, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? जी, आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड हैं, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं SC/ST हूँ। जैसा कि आपने बोला ये मामला तो सिर्फ 30 एक्ट के
अंडर Correct. कंप्लेंट डलवाने के लिए। लेकिन रिजर्वेशन बेनिफिट्स की जहाँ बात आती है वहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्टीज क्या SC/ST नहीं माने जाएंगे इस तो जजमेंट के बाद? क्या आज- assume कर सकते हैं? आज का जजमेंट जो है, अभी तक जजमेंट अवेलेबल नहीं है। जजमेंट अवेलेबल होने के बाद इस विषय पे टिप्पणी होगी, पर आज का जजमेंट और हमारा जो सबमिशन था वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके और SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन कंप्लेनेंट है, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वाला इश्यू हमने रेज करा नहीं था और जो ब्रॉडर इश्यू है वो अभी भी पेंडिंग है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि SC/ST एक्ट का जो वही इस्तेमाल कर सकता है जो SC है, जो कन्वर्टेड जी। वो नहीं करेंगे, इसको जी, explain कीजिए। जो 1989 का एक्ट आया, उस एक्ट ने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में मेंशन करा था उस समय में कि ये एक्ट क्यों आया। एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग थे जो SC/ST से थे, पर उनका जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे। इसीलिए दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। एक्ट ने ये कहा कि इन सब लोगों के सामने, अगर आप SC/ST के सामने कोई गलत काम करते हैं, उनको आप गाली गलौज करते हैं, उनके सामने आपने कोई एलिगेशंस करे हैं जो गलत हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो जाके इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो FIR रजिस्टर कर सकता है। अब उसका डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड है। एक्ट में ये बताया गया है कि SC/ST कौन होंगे। तो SC/ST का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो SC/ST है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमारे 2-3 जजमेंट से, और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुसाई के केस में आया था, उसने इसको इंटरप्रेट करा है कि ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्वर्टेड है वो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन SC/ST अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो इसीलिए अगर ये एक्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बेसिस पे रहेगा और वो अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आज के जजमेंट ने यही कहा है कि SC/ST एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करेगा जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, और ना कि कोई व्यक्ति जो इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी लाभ खत्म हो जाते हैं, जिससे इस मुद्दे पर अब किसी तरह की उलझन की गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टुडे।